फ्री विल की अब हम बात करेंगे. सो जेम्स his analysis of voluntary behavior, he kind of gave a theory called James ideomotor theory of behavior. जिसका आइडिया है कि an idea of a certain action causes that action to occur. तो ये थ्योरी कहती है कि सिर्फ कोई आइडिया भी होगा एक सर्टेन एक्शन का, सो देन इट विल कॉज दैट एक्शन टू अकर. ही बिलीव दैट in vast majority of cases the idea follows immediately and automatically, habitually and reflexively into behavior. उनका मानना था कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो आइडिया है ऑफ एन एक्शन it follows immediately, automatically into behavior, right? The idea of an action followed immediately and automatically into behavior. Vast majority of cases में आइडिया से ही बिहेवियर होता है ऑटोमेटिकली, हैबिचुअली हो सकता है, रिफ्लेक्सिवली हो सकता है. सो ऑटोमेटिक प्रोसेस कंटिन्यू अनलेस मेंटल एफर्ट इज एक्सपेंडेड टू पर्पसली सिलेक्ट एंड होल्ड एन आइडिया इंटर. ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग हो रही होती है आपकी कॉन्शियसनेस में मेंटल एफर्ट्स की, एंड अनलेस आप मेंटल एफर्ट डाल के पर्पसिवली किसी आइडिया को सिलेक्ट करो, होल्ड करके रखो उसको अपनी कॉन्शियसनेस में. जेम्स के लिए वॉलंटरी एक्शन, मेंटल एफर्ट दोनों ही इनसेपरेबल है. द आइडिया ऑफ वेरियस बिहेवियरल पॉसिबिलिटीज आर रिटेन फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड देयर रिकलेक्शन इज प्री रिक्विजिट टू द वॉलंटरी बिहेवियर. सो द वेरियस बिहेवियरल पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो रिटेन होती हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस में. देयर रिकलेक्शन इज प्री रिक्विजिट टू द वॉलंटरी बिहेवियर. फॉर द आइडियाज़ of various possible actions, one is selected for attention, and that is the one that causes behavior and continues to do as long as the idea is attended to. ठीक है, from the ideas of various possible actions, एक select होता है that causes the behavior and that continues unless आप दूसरे किसी idea को attend ना करें. So what hold attention kind of determines the action as well. So effort of attention is thus the phenomenon of will. आप जब अपनी attention को pour in कर रहे हैं तो ये willfully कर रहे हैं, तो ये will का जो है काम है. So the effort of attention is thus the essential phenomenon of will. Next, because these ideas cause behavior, it's important to attend to those ideas that result in behavior deemed desirable under the conditions. उन्हीं आइडियाज़ से डील करना चाहिए जो डिज़ायरेबल बिहेवियर शो कर रहे हैं. अगली है जेम्स की थ्योरी ऑफ वोलेशन और इमोशन को अगर हम क्लब करें, ज्वाइन करें, सो वी थिंक, सो इट विल से दैट व्हाट वी थिंक डिटरमाइंस व्हाट वी डू डिटरमाइंस हाउ वी फील. सो जेम्स का मानना था कि बॉडीली इवेंट्स कॉज करते हैं हमारे थॉट्स को, ठीक है, और फिर हमारे थॉट्स कॉज करते हैं हमारे बिहेवियर. बॉडीली इवेंट्स, थॉट विल कॉज बिहेवियर. माइंड बॉडी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच थी उनकी. एग्जैक्टली हाउ द माइंड एंड बॉडी इंटरैक्ट्स वाज नॉट नोन टू जेम्स. राइट, कैसे माइंड बॉडी इंटरैक्ट करती है ये जेम्स को नहीं पता था. देन कम्स प्रैग्मेटिज्म, और ये एक बहुत ही एसेंशियल फाइंडिंग है ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट कॉल्ड फंक्शनलिज्म. सो दे बिलीव्ड कि एनी बिलीफ, एनी थॉट और एनी बिहेवियर must be judged by its consequences. Any belief that helps to create more effective and satisfying life, that is worth holding. कोई भी ऐसा belief जो satisfy कर रहा है, life को effective बना रहा है, वो worth है for holding, right? Whether such a belief is scientific or religious, कैसा भी हो, believing in free will was emotionally satisfying for him, so he believed in it. And pragmatic viewpoint के according, truth is something that is out there not in static form waiting for to be discovered, but as many of the rationalists maintained, जैसे truth is something जो change होता रहता है, right? It is gauged by effectiveness under changing circumstances. What works is true because circumstances change. Truth must be forever a dynamic concept. God, free will, matter, reason, absolute energy are not the end of search according to him, but ये beginning है. Practical consequences of such concepts must be determined. He urged both experimentation and introspection.
उन्होंने एनिमल स्टडीज़ पे भी फोकस किया, ह्यूमन स्टडीज़ पे भी फोकस किया, abnormal ह्यूमन्स पे भी स्टडी की. He encouraged the use of methods that shed light on the complexity and he said कि जो भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कुछ भी बता रहे हैं उनको ऑमिट करना गलत है. 1907 में, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, 1907 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था प्रैग्मेटिज्म. ठीक है, 1907 में, राइट. सो आई गिव दिस 2 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ इन दिस बुक प्रैग्मेटिज्म में. टेंडर माइंडेड पीपल होते हैं जो रैशनलिस्ट होते हैं, बहुत प्रिंसिपल ओरिएंटेड होते हैं. दे आर रैशनलिस्ट, दे आर इंटेलेक्चुअल, ऑप्टिमिस्टिक, रिलीजियस, डॉगमेटिक. ठीक है, आइडियलिस्टिक, दे बिलीव इन फ्री विल. ये अच्छे वाले हो गए. देन टफ माइंडेड हो गए जो एम्पेरिसिस्ट होते हैं. ठीक है, सेंसेशनलिस्ट होते हैं, मेटेरियलिस्टिक होते हैं, पैसिमिस्टिक होते हैं, रिलीजन पे फॉलो नहीं करते, फेट पे मानते हैं, फैटलिस्टिक होते हैं, स्केप्टिकल होते हैं. No idea, no philosophy, no religion should be accepted or rejected except, मतलब जिसका यूज़फुलनेस है that idea should be kept, और जिसका यूज़फुलनेस नहीं है वो नहीं कीप होना चाहिए. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 1907 वाली प्रैग्मेटिज्म वाली चीज़ कि he gave 2 types of personalities and he talked about कि how tender minded people are rationalist, ठीक है, इंटेलेक्चुअल हैं और प्रिंसिपल ओरिएंटेड हैं, ऑप्टिमिस्टिक, रिलीजियस, डॉगमेटिक हैं, आइडियलिस्टिक हैं. फ्री विल पे विश्वास है इन लोगों का. जबकि टफ माइंडेड एम्पेरिसिस्ट हैं, इररिलीजियस हैं, पेसिमिस्टिक, मेटेरियलिस्टिक, फेटलिज्म पे विश्वास रखते हैं. ठीक है. सो जेम्स इवन उन्होंने जब पैरासाइकोलॉजी की बात आई तो उन्होंने मतलब एंथुजियास्टिकली एम्ब्रेस किया इसको 1884 में. 1884 में उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी फॉर द साइकिकल रिसर्च फॉर्म की थी. 1884 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च. द लास्ट टॉपिक इज़ जेम्स का कंट्रीब्यूशन क्या है साइकोलॉजी में. सो इनकॉर्पोरेटेड एवोल्यूशनरी थ्योरी इनटू साइकोलॉजी. यूज़फुलनेस की उन्होंने काफ़ी बात की है. ही रेवर्ड अ मेजर डिपार्चर. हम प्योर साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा लाइक वॉलंटरिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म से दूर कर दिया साइकोलॉजी को. डिपार्चर लाए उसका, है ना. प्रैग्मेटिक स्पिरिट के थे वो, एंड क्वाइट नेचुरली ही डेवलप्ड साइकोलॉजी को एज एन अप्लाइड साइंस बनाना शुरू किया. फॉर जेम्स एज वेल एज फॉर फंक्शनलिस्ट हु फॉलोड हिम, यूजफुलनेस डिफाइन बोथ ट्रूथ एंड वैल्यूज़. जेम्स की बात करें या कोई जो बाकी भी फंक्शनलिस्ट थे, वो उनके लिए यूज़फुलनेस से डिफाइंड था. जो भी ट्रू है, जो यूज़फुल है वो ट्रू है, वो वही उससे डिफाइन होती वैल्यूज़. जेम्स ने रिसर्च टेक्निक्स को साइकोलॉजी में जैसे इंट्रोस्पेक्शन को लाए, एक्सेप्ट किया, एंड एवरीथिंग दैट कुड बी यूज्ड टू यील्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, every that method was used. He even studied all the aspects of human existence and included behavior, cognition, emotion, volition, religious experience को भी अपनी उसमें include किया उन्होंने. ठीक है. Studying all the aspects of human behavior, cognition, human existence, behavior, cognition, emotion, volition, even religious experience. He even expanded subject matter of psychology, इन सबको इंक्लूड करके behavior, cognition, emotion, volition सबको डाल के तो subject matter बन गया. उन्होंने eclectic approach, eclecticism पे उनका focus था, right? And then he focused, later on in his life, he focused on philosophical things, right? He was an like outstanding, creative, experimentally oriented psychologist. He noted that without the presumption of determinism, science would be impossible. And insofar psychology एक science है तो इसको deterministic भी होना पड़ेगा. Science is not everything, और कुछ approaches के लिए humans को humane approach भी ज़रूरी है. ठीक है. The assumption of free will might be useful.